Morning, everyone. How are you all? Good Hello, morning. morning. Good We are morning, fine. sir. So what about you? Sir, what about you? I'm also fine, beta. I welcome you all in this learning session. In today's today's live class, we would be starting the new section, that is the phonics section. But before that, I would like to confirm that whether is there any query, is there any questions from the vocabulary junction of chapter number 8. सभी लोगों ने जो होमवर्क दिया गया था, everybody have done, or is there any issue? Yeah, is there any concern? Let me know if is there any. Sir, I have done. Everybody has done. Sir, I have done. So already we have discussed. Already we have discussed. Acha, is there? I have opened the wrong one. I have opened the wrong one. Let me open. Sir, vocabulary junction. Sir, exercise 2, sir, थोड़ा difficult है. Exercise 2 in book A या book B? Sir, book A. Sir, book B. Exercise 2. Okay, let me. The underlined words have more than one meaning. Make sentences to a second meaning of that. This one, na? क्यों? Yes, sir. Yes, sir. Book B, sir, vocabulary. Okay, no issue. I'll help you. Let me open the things. Now, this is the chapter. You want to know. You all want to confirm the answers of this question. The second question in book B. यही है ना? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, book B. So what is problem here, beta? Yes, sir. What is No, problem? sir, ये नहीं है. Just fill in each pair of blanks with homonyms. Sir, exercise 2, sir, vocabulary junction. Sir, chapter 8, sir, book B. Chapter 8, book B or book C? Sir, book B. Book B. B. बुक सी के ये सारे दिए गए थे, इसको सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? Exercise number 2. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let me open the book B. Let me open the book B so that we can discuss. Problem नहीं है. Yes. Before grammar there is a phonic, and before phonic there is a. But it was Yes, sir. discussed. The question number 2, ये homonyms ये डिस्कस किया गया था ना? Yes, sir. तब इसमें क्या Yes, problem sir. है, शनिका? Yes, sir. What is problem here in this? Yes, sir. सर बस ए वाला ही नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है. बेटा आप क्लास नहीं लेती हो. The problem is this. The problem is that कि you didn't attend the class. First वाला the dogs bark scared the guest. The dogs bark मैंने साफ साफ इसको स्वयं बताया था. I remember. The dogs bark scared the guest, and the Yes, sir. this tree has a brown colored bark. Bark means होता है पेड़ की छाल, और dogs bark मतलब जो sound of dog को भी bark बोलते हैं. तो that means कि in both the blanks you should write bark. Okay? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, is there any other concern, any other query from the No, sir. vocabulary junction of chapter number 8? बेटा शानविका, एक के इस पहले के अलावा भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज गो थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ द प्रीवियस लाइव क्लास. बेटा जब क्लास नहीं करती हो तो कम से कम रिकॉर्डिंग देख लिया करो. नो सर, मैं क्लास करती हूँ सर. उस दिन थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था तो नेटवर्क प्रॉब्लम था. यू शुड गो थ्रू द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ दैट लाइव क्लास. आपका कम से कम एक दिन बच जाता. ओके, इज देयर एनी अदर कंसर्न? बेटा ईच एंड एवरी क्वेश्चंस वी डिस्कस एक्चुअली ड्यूरिंग द लाइव क्लास. सारे एक एक करके सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ, सो दैट जो बच्चे थोड़ा सा नहीं कर पा रहे वो भी करने की कोशिश किया करें. नाउ in today's session we have to start the phonics section. In this section we have to talk about the sounds of the some letters. In this chapter we would be reading that what is the pronunciation of the letters GH.
what is the correct pronunciation of the letter GH? Because actually there are many places where the pronunciation of letter GH sounds like F, and there are some places where the pronunciation, the sounds of letter GH is like Z. And there are also some other places where GH doesn't having any sounds. That means that GH is considered as a silent letter. So we would be discussing, we would be going through those words in that is used in different situation and different places. So let us start with these lines that has been taken from the poem. Can you read, anyone? कोई पढ़िए इसको. A couple of lines have been taken from the poem. Please, Aman Barma, read these couple of lines. Then produced with so much thought, he rested beneath the yoke tree sought. Beta, you are reading couple of lines and this is a phonic section. That means कि you are supposed to speak properly. You are supposed to pronounce the words properly. जब आप गलत स्वयं पढ़ेंगे then how it would be going through. ये फटीज्ड पढ़ा गया था. जी को जा हमेशा बोला जाता है. प्रोनाउंसिएशन जंक्शन में बताया जा चुका है. देयर आर मेनी प्लेसेस वहां कहीं पे जहां पे जी को गा साउंड निकलता है, जी का जा भी साउंड कहीं कहीं निकलता है. बट जब ये वर्ड्स आपको पढ़ाया गया था, इसका क्या मतलब है ये भी समझाया गया था. ध्यान है किसी को? यस सर. क्या है सर? बहुत ज्यादा वेरी टायर्ड सर. वेरी टायर्ड यानी बहुत ज्यादा थक जाना है. इट वॉज अ फटीग. ये जा नहीं है, गा साउंड यहाँ पे आ रहा है. देन फटीग विथ सो मच थॉट he rest beneath the oak tree sought. Here there is a couple of words that is in bold format. अभी इसी वर्ड्स को जो बोल्ड फॉर्मेट में है, इसी वर्ड्स को मैं दूसरी तरीके से लिखूं यहाँ पे. THOT. Now, if I ask you all to read this word, what I have written in blue color, तो इसको क्या पढ़ेंगे? शान के जरा पढ़िए तो इसको. What is this? Sir, the words in bold color are thought, sloth. बेटा, I am asking to read this one. Please, इसको पढ़िए केवल. जो ब्लू कलर से मैंने लिखा, just read this one in single word. What is this? Sir, Thought. Now I'm going to write another word. Tanishka, you have to read now. Yes. Tanishka, read this one. What is this? Sort. It's a thought. It's a sort. और जो ये बोल्ड जो फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये क्या है? सानिका, आप ही बताइए. व्हाट इज दिस? थॉट. ये भी थॉट है, ये भी थॉट है. ध्यान देने की बात है, सभी लोग ध्यान दें. दिस इज ऑल्सो प्रोनाउंस एज थॉट. इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस एज थॉट. यहाँ पे भी सॉट, यहाँ पे भी सॉट. दैट मीन्स कि GH का कोई वैल्यू ही नहीं बचा. GH को मैंने यहाँ पे निकाली तो दिया है. That means there are some of the words. That means there are some of the words where GH considered as a silent letter. That means कि GH का कोई sounds नहीं होता during the pronunciation of that words. तो अभी एक ही situation रहा. Now I'm going to talk about the another situation. There are some words like in the words thought and sort, the letters GH are silent. ये तो already discuss किया जा चुका है. But there are some other words like ghost, ghee. The letter G is pronounced while the letters H is silent. थोड़ा सा आप इसमें कंफ्यूज होंगे. ये घी आप लोग बोलते हैं, GH घी. हम लोग भी अमूमन हिंदी में घी ही लिखा जाता है और GH से घा एक साउंड निकल के आता है 12 खड़ी के हिसाब से, तो इसको लोग घी ही पढ़ते हैं इंग्लिश में भी. But whenever you will check through Google, you would be getting that कि the correct pronunciation of this word is ghee. यानी H आपका कहीं ना कहीं साइलेंट लेटर है. आप गी नहीं बोल देंगे, लेकिन आपको जब ये H साइलेंट करते हैं तो कहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा तो असर जी पे रहता है, इफेक्ट रहता है, बट H का हा वाला साउंड नहीं आएगा.
इन द सेम वे इसको कई लोगों ने घोस्ट पढ़ते होंगे. इट्स नॉट ए घोस्ट, इट्स अ Ghost. घोस्ट. The दैट मीन्स ghost. ये घोस्ट मीन्स होता क्या है? भूत. Sir, भूत. चलिए Sir, ठीक है, डरने की भूत. जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखा भर है. इन वर्ड्स लाइक गोस्ट एंड घी द लेटर जी इज प्रोनाउंस. जो लेटर जी है उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है, उसका साउंड कहीं ना कहीं गा वाला साउंड निकल के आ रहा है. वाइल द लेटर्स एच इज साइलेंट, जहां लेकिन जो एच लेटर का साउंड है वो कहीं ना कहीं साइलेंट है. देयर आर सम अदर वर्ड्स वी विल बी टॉकिंग इन द एग्जांपल सेक्शन. नाउ देयर आर अभी दो सिचुएशन हो गए बेटा, जहां पे आपको जी एच का साउंड पहला सिचुएशन में क्या हुआ? in the first situation the letters gh are silent. जो letters gh है वो silent है. दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ? whenever gh coming together the letters gh pronounce as ga, gi, goose, like this. यानी h वहां पे आपका साइलेंट है, h आपका साइलेंट है, gh दोनों नहीं. and there is a third situation also. एक तीसरा सिचुएशन, तीसरा समय अवस्था भी है. व्हाट इज दैट? द लेटर्स GH साउंड लाइक F इन द वर्ड लॉफ. लेट्स से देयर इज अनदर वर्ड हैज बीन रिटन रफ. आप इसको रफ ही पढ़ते हैं. Yes, sir. अब रफ को ROUGH यानी GH को आप घा ना करके, गा ना बोल करके फा पढ़ते हैं. दैट मीन्स कि इसी GH लेटर के तीन अलग अलग साउंड्स निकले. आपका एक तो गा, एक फा और दूसरा आपका साइलेंट लेटर है. यानी वहां पे साउंड्स ही नहीं है. यानी GH को तीन अलग अलग तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है. तो जस्ट इन दिस सेक्शन यू ऑल नीड टू गेट फेमिलियर लाइक कॉमन वर्ड्स. In this phonics section we have to get familiar with these situation, with these words. जो common words हैं वो example के रूप में दिए हैं. We have to go through that and we have to take care while reading in future. So let us read all the words after the so that we can know that ki in which words GH pronounced as za, GH pronounced as ga and or fa, or at what, in which situation, in which words GH would be the silent, GH would be considered as a silent letter. So please read this column. Not this column, you have to read row, first row. Like first row के सारे words को पढ़ना है, फिर second row, फिर third row, फिर fourth row, फिर fifth row, one by one. Anupriya, start. Night, Okay. night, ghost, rough, fight, बस एक ही रो. spag, only one row you have to speak, you need to read. और तीनों में अलग अलग आपको थोड़ा सा emphasize भी करना है जो differences की बात कर रहे हैं. Also we need to focus on that. In the first cell आपका यहाँ पे बोला गया night. अब यहाँ पे के भी आपका साइलेंट है, लेकिन अभी हम GH की बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या है NIT भी हम नाइट ही बोलते हैं. यानी GH का साउंड यहाँ पे नहीं यूज किया गया. दैट मीन्स कि इट्स नाइट. GH का साइलेंट लेटर यहाँ पे है, बट इन दिस वर्ड गोस्ट H आपका साइलेंट लेटर है. एंड इन दिस सिचुएशन, इन दिस वर्ड्स GH इज प्रोनाउंस्ड. जो GH का साउंड है वो फा करके आ रहा है. दैट मीन्स कि रफ. नाउ वी हैव टू रीड द सेकेंड, वी हैव टू रीड वर्ड्स फ्रॉम द सेकेंड रो. निहारिका वर्मा. Fight. Okay. Fight. Very good. Split. Split. Spaghetti. चलिए next. Spaghetti. What is this? Tough. Tough. Now wait. बेटा fight means जानते हैं झगड़ा होता है. What is this? यहाँ पे डबल टी जब आता है तो कई बार इसका साउंड डा वाला आता है. डा पूरा डा नहीं बट डा आता है. लेकिन अभी आपके सामने मैं आपको बता दे रहा हूं. बट नाउ इन दिस सेक्शन जस्ट वी हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ GH. तो यहाँ पे घा को गा की तरह प्रोनाउंस किया जा रहा है. स्पैगेटी. व्हाट इज दिस? किसी को आइडिया है? Spaghetti. क्या है ये? Spaghetti. व्हाट डज इट मीन? Spaghetti.
अ टाइप ऑफ डिश, वेरी गुड, अ टाइप ऑफ डिश, ये एक तरीके का खाने का नाम है, आप कह सकते हैं टाइप ऑफ मैक्रोनी चाउमीन, व्हाटएवर यू वांट टू से। एंड दिस वर्ड इज बीइंग प्रोनाउंस एज टफ, यानी जीएच को यहाँ पे फा की तरह प्रोनाउंस किया जा रहा है। इन द सेम वे also you can read words from the third row, Savitri. Sir, Light, very good. please, sir, enough. It's a ghastly in the sense भयंकर, enough मतलब पर्याप्त, and light हल्का। Now read words from the fourth row, Aman. थ्रो, जीटो, गेट, बेटा गा पूरा नहीं बोलना है, गेटो, गीटो, एच वाला साउंड भी करना है, गीटो आप बोल रहे हो, दैट इज रॉन्ग, गीटो नहीं है। और पहली बार डबल टी जब आता है तो आप पे डा का भी थोड़ा सा साउंड आता है। सान्विका एक बार आप बोलिए, कोशिश करिए। सर गीटो, गीटो। चलो, गैडू मीन्स एक होता है यहूदी बस्ती का नाम को बोला जाता है, इट्स अ कफ। थ्रो यानी THROU भी होता है तो भी थ्रो बोलते, GH लास्ट में जुड़ा है तो भी उसका साउंड का कोई वैल्यू नहीं है, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज, द करेक्ट स्पेलिंग इज थ्रो, GH के साथ ही करेक्ट स्पेलिंग होगा। थ्रो मतलब के माध्यम से, के द्वारा, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड दिस वन थ्रो दिस पर्सन, आई हैव रिसीव्ड बुक्स थ्रो अनिल मौर्य, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ रीडिंग अहेड, मूविंग अहेड, अभी लास्ट वाला मैं ही पढ़ता हूं। दिव्या आप एक बार पढ़िए। दिव्या इज नॉट डूइंग। आकांक्षा पांडे बेटा आप एक बार कोशिश करिए। Sir, ऑल्दो मीन्स हालांकि, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, अगेंस्ट मीन्स बहुत चक्का, मतलब एक तरीके से सरप्राइज, इट इज अ सिनोनिम ऑफ सरप्राइज आप कह सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस? रुचि क्या है ये? टफ। जैसे आप यहाँ पे रफ पढ़ रहे, टफ पढ़ रहे, इनफ पढ़ रहे, कफ पढ़ रहे, इसी तरह ये ट्रफ है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ट्रफ? गर्त यानी एक तरीके से गहरा, गहरा तो नहीं कह सकते, डीप तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये कहते हैं ना, यू कैन रिलेट विद द डीप, इट्स ए ट्रफ मींस एक तरीके से गर्त। बेटा these are the some of the words, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं that is having the different pronunciation, जहां पे आपके GH का अलग अलग साउंड्स हैं। कई सारे वर्ड्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे अभी तक, बहुत सारे वर्ड्स आप पढ़ेंगे, तो इसका कोई रूल्स या रेगुलेशन, कोई रूल्स या फॉर्मूला नहीं होता कि कब आप सिचुएशन या ऐसे कौन सा वर्ड्स में किस तरह लेटर्स आएगा कि GH को फा प्रोनाउंस किया जाए या GH को गा प्रोनाउंस किया जाए या GH को साइलेंट रखा जाए, ऐसा कोई रूल नहीं है। नहीं तो रूल भी आपको समझाया गया होता और आप उसी तरीके से इन फ्यूचर फॉलो करती। व्हाट यू हैव टू डू, आपको बस फेमिलियर रहना है। कई बार GH को आप आंख मूंद करके घा ना बोल दें, कहने का मतलब यह है कि आप GH को आंख मूंद के घा ना बोल दें। यू शुड गो थ्रू, यू शुड चेक द प्रोनाउंसिएशन ऑफ GH। जब कहीं भी आपको नया वर्ड्स दिखे जहां पे बहुत ज्यादा आप इंश्योर ना हो, आप कभी अपने टीचर से, अपने एल्डर से या कहीं पढ़ते हुए ना सुने हो, देन यू शुड गो थ्रू द गूगल या कहीं पे भी आप, यू शुड गो थ्रू योर टीचर्स, एल्डर्स वन, जो भी आपके पास रिसोर्सेस हो, टू एंड चेक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट वर्ड। समझ में आया? Yes, sir. GH का घा ना बोल करके उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, GH का प्रोनाउंसिएशन घा भी कई बार गा, फा या साइलेंट क्या होगा, यू हैव टू चेक, यू शुड चेक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, देन ओनली यू शुड रीड। नया वर्ड्स आए तो जरूर चेक करें, कम से कम आपको नॉलेज होगी, आप 4 लोगों को बताएंगे भी, आप सही पढ़ेंगे, आपको सुन के 4 लोग भी सही पढ़ेंगे, गलत बिल्कुल नहीं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज ए छोटी सी एक्टिविटी है, वेयर सम वर्ड्स हैव बीन मिसस्पेल्ड इन दीस सेंटेंसेस। ये 5 सेंटेंसेस आर देयर, यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मिसस्पेल्ड, यानी मिसस्पेल्ड मतलब क्या हुआ, मिसस्पेल्ड मींस क्या हुआ? सत्यप्रकाश मौर्य, अनिल मौर्य, क्या हुआ इसका मतलब मिसस्पेल्ड?
बताइए सत्यप्रकाश सर अनिल, छूट गया है वो। क्या हुआ? सर छूट गया। सर छूट गया सर जो कुछ छूट गया है या कुछ गलत है सर मान मिस लीजिए, प्रिंट हो गया सर, मिस प्रिंट। यानी जो स्पेलिंग है वो सर उसकी मिस कमी प्रिंट हो है। गया। इन दीज सेंटेंसेस रीराइट देम करेक्टली। Yes, sir. आपको उन सभी वर्ड्स को फिर से लिखना है, यानी उसकी स्पेलिंग को सही करना है। एंड देन रीड द सेंटेंस अलाउड। उसके बाद आपको सेंटेंस को तेजी से पढ़ना है। नाउ द फर्स्ट, द नाइट लॉस्ट द फाइट विद द जायंट। जायंट मींस बताया गया था ना क्या होता है, इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। राक्षस। 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 सर विशालकाय। सर विशाल। राक्षस किसी ने बोला है बेटा, विशाल। आपको गुलिबर वाले चैप्टर में तो पढ़ाया गया था शायद। Yes, sir. यस सर, यस सर, बोलिए। क्या क्या पढ़ाया गया था? यस विशाल। यस यस सर। चलिए ठीक है। अब इसमें इन विच वर्ड्स, कौन सा वर्ड रॉन्ग है, कौन बताएगा? Show me. Night. नाइट। सर नाइट। फाइट। नाइट। ठीक है, शांत रहिए, Sir, five. बेटा ऐसे बताएंगे तो शायद होगा। कई सारे बच्चों से मैं कुछ पूछ नहीं पाया हूं, उनसे भी पूछ लूं इसी बहाने। अतुल चौहान बताइए, विच वन इज द रॉन्ग वन, जरा उसका सही करके बताइए तुरंत। नाइट। नाइट की स्पेलिंग क्या होना चाहिए? KNITGH। KNIGH। KNIGH रॉन्ग है। KNIGH भी रॉन्ग है। KNIGH क्या होता है सत्यप्रकाश बताइए। अतुल तो ये भी नहीं बता पा रहे, नाइट की स्पेलिंग ही नहीं बता पा रहे हैं अब ये भी, जबकि हम लोगों ने पढ़ा है। सर KNIGST। KNIGST, वेरी गुड। नाइट मीन्स होता क्या है? सर योद्धा। शूरवीर, योद्धा, जो भी आपके कोलकाता नाइट राइडर्स आपके। द नाइट लॉस्ट द फाइट। ये फाइट ऐसे लिखा जाता है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फाइट? सर मैं हाँ बताइए, कोई भी बताइए जल्दी से। FIGSTE होगा या नहीं, ये बताइए मुझे। नहीं होगा, ई नहीं फाइट, दैट मीन्स के यहाँ पे नाइट और फाइट की स्पेलिंग गलत है, इसको सही किया गया। इन द सेम वे ऑल्सो यू हैव टू गो थ्रू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ स्टेटमेंट। ये सबसे बहुत ही ज्यादा इजी एक्टिविटी एक तरीके से है। कराऊंगा तो आप लोग क्लास फिफ्थ में पहुंच के क्या करेंगे। अब यहाँ पे घुस की स्पेलिंग गलत लिखा है, यू शुड करेक्ट दिस वन। तो यू हैव टू चेक दैट कि किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, उसी को सही करना है। यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। अगर नहीं कर पाएंगे, ऑल्दो की स्पेलिंग गलत है, लाइट की स्पेलिंग गलत है। यस सर। आई वांटेड समथिंग लाइट फॉर डिनर, ये वाला लाइट तो नहीं होगा ना, वो हल्का वाला लाइट होगा। तो लॉट्स ऑफ इनफ की स्पेलिंग गलत है। तो यस सर। अब सारा नहीं बताऊंगा, स्पैगेटी की स्पेलिंग शायद रॉन्ग ही है, अभी अभी आप लोगों को पढ़ाया गया। तो यू ऑल नीड टू करेक्ट ऑल दो स्पेलिंग। नाउ ये द कफ लास्टेड लॉन्ग, ये कफ इनफ, ये ऐसे ही लिखा जाएगा जो डॉक्टर के पास। आप लोग को सही करना है अपनी मर्जी से। दैट मीन्स कि you all need to correct this one. You have to complete this activity. Okay. Now there is another activity in the phonics section in book B, in book C, sorry, book C. उसको भी डिस्कस करते हैं, क्या है, क्या करना है आप सभी को। लेट मी ओपन। लिस्ट ऑफ बेटा सावित्री, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज अपना माइक बंद करिए। अनुप्रिया के यहाँ से भी। Now in book C there is a one more activity in phonics section.
you have to make a list of words where GH is silent or pronounced as F or G. जैसे आप लोगों ने 3 अलग अलग सिचुएशंस में आपको GH के प्रोनाउंसिएशन के वर्ड्स पढ़े थे, वो वर्ड्स नहीं, उसके अलावा देयर आर मेनी वर्ड्स, आपको उन सारे वर्ड्स को यहाँ पे लिखना है, कोई उसी टेबल में से मत लिख देना। समझ में आया? यस सर। आपको कुछ ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जहां पे GH आपका साइलेंट हो, कुछ ऐसे वर्ड्स लिखना है जहां पे F आपका जी की तरह F जो आपका गा की तरह प्रोनाउंस किया जा रहा हो, नहीं, जहां पे GH आपका फा की तरह प्रोनाउंस किया जा रहा हो, और कुछ ऐसे वर्ड्स लिखना है जहां पे GH आपका गा की तरह प्रोनाउंस किया जा रहा हो। ओके, यस सर। so you have to write at least 3 से 4 वर्ड्स आप जरूर लिखिएगा तीनों टेबल, तीनों कॉलम में। एंड देयर आफ्टर यू हैव टू मेक, जिन वर्ड्स को आप लिखेंगे उन्हीं वर्ड्स का आपको यहाँ पे सेंटेंस में यूज भी करना है। आप 4 के बजाय 3 ही वर्ड्स लिख दीजिएगा, बिकॉज देयर इज लेस स्पेस। तो 3 वर्ड्स आपका साइलेंट GH, 3 वर्ड्स वेयर GH प्रोनाउंस एज फा, एंड 3 वर्ड्स वेयर GH इज बीइंग प्रोनाउंस एज गा। तो ऐसे में 9 वर्ड्स हो जाएंगे, और उन 9 वर्ड्स को आप सेंटेंस में यहाँ पे आप यूज करेंगे। कर पाएंगे? सर 5 वर्ड्स लिखेंगे और 3 वर्ड्स का सर सेंटेंस बना देंगे। आप वर्ड्स कुछ भी लिख देना, आप 3 वर्ड्स के सेंटेंस भी कर दीजिएगा, वो भी अच्छा है। 3 वर्ड्स के सेंटेंस बना दीजिएगा या 2 वर्ड्स के सेंटेंस बना दीजिएगा, इट इज ऑन यू। ओके, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आई चेक इट, और जो भी गलतियां होंगी मैं इस पे जरूर बताऊंगा आप सभी। सर 4 वर्ड्स बेटा 3 लिख देना, 4 लिख देना, 5 लिख देना, बस लिखना है आपको। किसी को 6 लिखना होगा तो 6 लिख देना अपनी मर्जी से, बट आई डू नॉट वांट लेस देन 3 वर्ड्स। 3 से ज्यादा लोग अपने मर्जी से लिख सकते हैं, कोई 10 भी लिख सकते हैं, इट इज ऑन यू। That is how we have completed the phonics section. Okay, now your turn that you have to complete the homework. But after the phonics section there is a writing section also. I want to go through that. आज का आज ही हम लोग उसको देखना चाहेंगे, because what is there, just we will be teaching you all, and after that there is an activity. उसके बाद एक activity है, you have to complete that. What is there? Are you ready for the another fable? आपने जो पोएम पढ़ा ये क्या था, फॉकटेल था या फैबल था? सर फैबल था। फैबल जो मेन कैरेक्टर एनिमल्स होते हैं, यस सर। इसमें कहीं ना कहीं आपको मोरल भी छिपा रहता है। ये सारी चीजें आपको फैबल के बारे में बताया था ना जब शुरू किए थे हम लोग ये सेक्शन, ये थीम। यस सर। एक क्वालिटी फैबल्स आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देयर इज अनदर फैबल इन द राइटिंग सेक्शन। लेट अस रीड। Once a fox walking down a vineyard saw a bunch of grapes hanging down by the bowl. Thought the hungry fox that would be so yummy and tried hard to get the grapes so juicy. High up the wall, the fox could not reach. Tried hard as he could, but didn't succeed. Tad and mad he walked away, muttering he grapes are sour anyway. क्या समझ में आ रहा है? ये पोयम जो है एक तरीके से कोई कहानी तो बता रही है। क्या है कहानी, किसको समझ में आ रहा है? सर मुझे समझ में आ रहा है। बताइए क्या है ये? क्या है अनुप्रिया बताइए, व्हाट इज दिस? सर दिस इज अ पोएम। एक ये पोएम है, पोएम में कहानी क्या है? सर इसमें सर एक फॉक्स रहती है जो सर ग्रेप्स का एक बंच देखती है। सर वो बहुत प्रैक्टिस करती है कि मुझे मिल जाए, फिर उसको वो पहुंच नहीं पाती तो वो सोचती है कि सारे ग्रेप्स खट्टे हैं। होता क्या है बेटा, अभी आपने जो इस चैप्टर में पढ़ा, व्हाट इज दैट? द चैप्टर इज द अकॉर्न एंड द पंपकिन। अकॉर्न एंड पंपकिन के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है? इससे पहले आपने शायद एक क्रो, अच्छा वो क्लास 6 में है क्या? द क्रो सर पढ़े थे ये 5th आप ही लोग पढ़े पढ़े थे क्या? द क्रो एंड द फॉक्स। यस सर। क्रो एंड द फॉक्स वाला पोएम आप लोगों ने पढ़ा था। सेम उसी तरह का एक पोएम है ना ये? यस सर। यस उसी तरह का poem है। उसी तरीके का एक तरीके से थीम भी है, स्टोरी भी है। वहाँ पे क्रो था, बट यहाँ पे क्या है, कोई दूसरा एनिमल भी है। यहाँ पे एक तरीके से विनयार्ड। ये विनयार्ड मीन्स क्या होता है?
Sir, विनयार्ड, ये जिसको भी आता है बताइए, व्हाट डज इट मीन विनयार्ड? इट्स अंगूर का बगीचा, अंगूर का खेत एक तरीके से। वंस अ फॉक्स Yes, वॉकिंग डाउन अ विनयार्ड, एक बार क्या होता है, एक फॉक्स है वो कहाँ, वो एक अंगूर के बगीचे से जा रहा था। सॉ अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स के गुच्छे को यानी ग्रुप्स ऑफ ग्रेप्स को क्या बोलते हैं, बंच बोलते हैं। क्या देखा उसने, अ बंच ऑफ ग्रेप्स हैंगिंग डाउन बाय द वॉल, जो कि ग्रेप्स के गुच्छे को लटकते हुए उसने देखा। थॉट द हंग्री फॉक्स दैट वुड बी सो यमी, उस हंग्री फॉक्स ने क्या सोचा कि ये बहुत ही यमी होगा, बहुत ही डिलीशियस होगा। एंड ट्राइड हार्ड टू गेट द ग्रेप्स सो जूसी, जो बहुत ही जूसी ग्रेप्स था उसको पाने की बहुत सारी कोशिश किया। हाई अप द वॉल, उसने बहुत ऊंचा जंप किया वॉल के ऊपर। द फॉक्स कुड नॉट रीच, लेकिन फॉक्स पहुंच नहीं सका। ट्राइड हार्ड एज ही कुड, जितना हो सकता था उसने कोशिश किया, बट डिडंट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं हुआ। टायर्ड एंड मैड ही वॉक्ड अवे, थका हुआ हारा हुआ वो वापस गया, मतलब वॉक्ड अवे, वो वहां से फिलहाल जब सक्सेस नहीं हो सका तो वहां पे वो छोड़ के चला गया। मटरिंग द ग्रेप्स आर सो एनीवे, मटरिंग में एक तरीके से बड़बड़ाना, बुदबुदाना, क्या बोलते हुए, द ग्रेप्स आर सॉर एनीवे, वो ये बोलते हैं अपने आप को एक सांत्वना देने के लिए, वो सिर्फ ग्रेप्स तो खट्टे होंगे, बेकार होंगे, नहीं मिला कोई बात नहीं, अच्छा है, ये करते हुए बड़बड़ाते हुए वो वहां से चला गया। तो ये स्टोरी है जो कि आपका पोएम के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। सेम स्टोरी, देयर इज ए सेम स्टोरी जो अभी मैंने आपको बताया, जो अभी आपने पोएम पढ़ा, यहाँ पे स्टोरी फॉर्मेट में लिखा है। अब इसको एक बार पढ़ते हैं, क्या है। वन डे अ फॉक्स वाज वॉकिंग इन अ विनयार्ड, एक दिन अ फॉक्स वाज वॉकिंग इन अ विनयार्ड, एज ही वॉक, जैसे ही वो चला, he came upon some delicious looking grapes hanging from the winds high over a wall। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो क्या देखता, वो एक जो अंगूर का गुच्छा है लटकते हुए देखा उसने कहीं। He tried his best to reach them, उसने बहुत कोशिश किया, अपना बेस्ट कोशिश किया, to reach them, यानी अंगूर के गुच्छे तक पहुंचने की, but could not jump so high, लेकिन उतना हाई वो जंप नहीं कर सका। He walked away, वो वहां से चला गया। कंसोलिंग, अपने आप को कंसोल, अपने आप को सांत्वना देते हुए, कंसोलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को कंसोल करते हुए, अपने आप को सांत्वना देते हुए कि द ग्रेप्स वर प्रोबेबली सॉर एंड नॉट वर्थ द एफर्ट, और जो ग्रेप्स था वो शायद वो खट्टे हों और हमारे इतने ज्यादा एफर्ट के लायक नहीं होंगे। तो यानी सेम जो आपका स्टोरी आपने यहाँ पे पोएम में पढ़ा, जो ये फैबल आपने यहाँ पे पढ़ा पोएम के फॉर्मेट में, वही सेम आपका स्टोरी के फॉर्मेट में लिखा है। क्या अलग है कुछ? no, sir. इसी तरह द फॉक्स एंड द क्रो जो आपने पढ़ा था, उसको आपने इसके पहले कहीं बार स्टोरी के फॉर्मेट में भी पढ़ा होगा इसके पहले। यस सर मैंने पढ़ा है। स्टोरी एंड करना क्या है नाउ, व्हाट इज नेक्स्ट? अभी आपने सेम स्टोरी को पोएम और स्टोरी Sir, जो we अलग अलग have to फॉर्मेट में write- लिखा गया है। have to write a stone and the pumpkin story. We have to write the poem in the form of just wait, let me complete what you have to do. Already you have seen that there is a fable that has been written in the form of poem as well as story. आपने द फ्रॉक्स एंड द क्रो भी पोएम के फॉर्मेट में अपनी बुक में ही पढ़ा है, स्टोरी के फॉर्मेट में ऑलरेडी हो सकता है पहले कई लोगों ने पढ़ा हो, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। Yes. फिलहाल इन दोनों सेक्शंस, जैसे यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर फैबल आपका दो अलग अलग फॉर्मेट में लिखा है, इन द सेम वे द कॉर्न एंड द पंपकिन जो आपने अभी एक पोएम के फॉर्मेट में पढ़ा है अपने इस चैप्टर में, यू हैव टू राइट दैट फैबल इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, उस स्टोरी के फॉर्म में आपको लिखना है। तो क्या हुआ था, आपको एक्सप्लेन किया गया था सारे पोएम को, उसको आपको स्टोरी के फॉर्मेट में लिखना है इन योर वर्ड्स। सो हाउ मेनी कैन राइट? आप लोग कोशिश करिएगा, जरूरत होगी तो एक्सप्लेनेशन जो होगा, जो आपका पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन होगा, अपलोडेड होगा यूट्यूब पे, देख लीजिएगा, नहीं तो आप ग्रुप में ही आप मैसेज करिएगा, आई विल शेयर द थिंग्स, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट एंड you can write the Yes. fable the corn and the pumpkin in the form of story by yourselves. Okay, that's all for today. Yes. Now let us check that whether is there any activity in book C. Yes, there is an activity. अभी आपका इस राइटिंग सेक्शन में बेटा, आपके इस बुक में राइटिंग सेक्शन में आपकी यही एक एक्टिविटी है बुक बी में, तो आप इसको कंप्लीट करिएगा। इन दिस वे ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड द राइटिंग सेक्शन। अभी कोई इसमें डाउट तो नहीं है?
No, sir. आप लोग को समझाया जा चुका है, कराया भी जा चुका है। आप लोग को अपने मर्जी से लिखना है, आप लोग को अपनी तरफ से कोशिश Yes, करना है। sir. गलत होगा तो मैं उसको सही करूंगा, बट आप लोग को Yes, कोशिश करना sir. है। मैं इतना कह दिया हूँ कि फॉर द हेल्प जो ना कर पाए वो एक बार स्टोरी जो भी एक्सप्लेनेशन है उसको ओपन कर लीजिएगा, उसी में से बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. After phonics section in book C, there is an activity राइटिंग जंक्शन। राइटिंग जंक्शन में एक एक्टिविटी है बुक सी में भी। क्या है? चूज एनी पोएम यू लाइक एंड राइट इन योर नोटबुक, देन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी। आप कोई भी पोएम, आप एक काम करिएगा, लेट्स से बुक डी में अगर आपके पास स्पेस नहीं होगा देन यू कैन राइट द स्टोरी ऑफ दैट, द फॉन एंड द पोएम, उसी को ही आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। लेकिन लिखिएगा जरूर, ऐसा ना हो कि आप लिखे ही ना। ओके? तो क्या Yes, sir. सॉफ्ट राइट कर सकते हैं? तो आपको क्या हुआ बेटा? Sir, book में ही हाँ, बुक में इसी में ही आप यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिएगा। यू हैव टू राइट द हेडिंग। द क्या आपका हेडिंग था? द पंपकिन। Sir, the acorn and the Acorn and the pumpkin. pumpkin. The acorn. द कॉर्न एंड द पंपकिन वाला जो पोएम ऑलरेडी आपने पोएम के फॉर्मेट में पढ़ा है, उसी को स्टोरी के फॉर्मेट में आप यहाँ पे लिखिएगा। हाँ, बट यहाँ पे ऊपर आप एक बार हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा, यानी टाइटल ऑफ द स्टोरी, टाइटल ऑफ द चैप्टर जैसे होता है, तो उस स्टोरी का टाइटल आप कर रहा है क्या हुआ? Yes, sir. सर पोएम भी सौरभ की आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। क्या रहा है सर पोएम भी राइट करना है। पोएम नहीं, पोएम तो ऑलरेडी लिखा ही है आपके बुक में। Yes, सुनोगे sir. सुनोगे है नहीं, पहले सुन लीजिए फिर उसके बाद पूछना। पोएम ऑलरेडी लिखा है, यहाँ पे लिखना द कॉर्न एंड द पोएम, टाइटल डालना, फिर उस पोएम को आप अपनी स्टोरी फॉर्मेट में आप लिखिएगा यहाँ पे। समझ में आया? Yes, sir. हाँ। अब कोई सुनो, देन यू कैन आस्क। Any questions? No, sir. No, That's sir. all for today, beta. Your session is also about to be closed. Okay, that's all for today. Yes. Goodbye everyone. Sir, goodbye. बेटा सभी लोग भेजिएगा जरूर वर्क। आई नीड द पिक ऑफ योर वर्क 2 आवर, ध्यान रखिएगा। मुझे फोटो चाहिए, ऐसा ना हो कि विदाउट वर्क यू आर गोइंग टू ज्वाइन द क्लास। सचिन वगैरह ध्यान से सुनिएगा, विकास